Hello and welcome to Talk Free. Everyone dreams, but very few succeed. Why? Probably because dreaming is easier than executing. You do not have to work hard to dream, but to convert that dream to a reality, you need to work really hard. Dreaming is definitely easier. Firstly, people restrict themselves while dreaming too. They dream too low. People fail to realize the higher the dreams, more the kick. And then, if they see troubles coming their way, they take a U turn. Troubles are nothing but building blocks to success. If you want to succeed like never before, you have to face troubles headstrong. Everyone on this planet have to face troubles. It completely depends on how you handle those troubles. Also, believe in infinite possibilities. Just because you cannot see them, it does not mean they don't exist. Dream the impossible and see them converting to reality. That's the fun. And the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. And if you have a heartbeat, there's still time for your dreams. And just don't dream your life, live your dreams too. Make a plan, have a goal, set deadlines, face your fears, and in that process, one will face infinite troubles. Don't let today's trouble bring you down. Don't let life's little obstacles keep you from trying. Don't let your fears keep you from dreaming. Do not give up for any reason. You know what? Just do it. And to discuss this, we have a spectacular guest with us. We have with us Yash Chaturvedi, an amazing actor who has worked in movies like Bala, Dream Girl, Fanay Khan, seen in web series like Khan Number One and Anjan on Netflix, show on GTV, Aapke Aa Jaane Se, and commercials like Dish TV, and the latest one being the IPL Bingo ad. Hailing from Bada Bazaar, Kolkata, his life has not been a cakewalk. Moving out from the city of joy to the city of dreams, that is Mumbai, building his dreams. He has come a long way, and there's lot more of him to come yet. He has been a singer, a dancer, one of the most popular MCs of Eastern India, and now an actor. Our today's topic, Do It, that is, dreams over infinite troubles, perfectly suits him. We welcome you to Talk Please. Hello everyone, this is Yash, and I'm so happy and glad that you guys have invited me in this amazing show. I have been following your videos because I somehow I'm related to Sanjay, and so he keeps posting his stuffs on social media, and he also, he used to send me his links. Ki bhaiya, please go through how is it and everything. But I'm so glad that somebody apart from me is somehow related to this media industry. I'm so glad that I'm happy to be the part of your show. Thank you for calling me. Thank you so much for being a part. I have heard and definitely seen you so much that it is really a proud moment for us to have you on our show. Even I'm very much proud that I'm here in your show Oh to my talk to God, you, whatever I can say. Yeah, that has really made us on cloud nine. Coming it from you. always. आप बड़ा बाजार से हैं and जी. say 20-25 years back, चीजें बहुत अलग थी. So, what initial struggles did you face? Yeah, definitely. See, if you talk about almost 20 years ago, we used to stay in a very common apartment. Whatever you are doing, it visible to the entire society near you. So वो एक दिक्कत थी एंड द प्रॉब्लम इज कि उस समय जैसे अभी इतना ज्यादा मीडिया हो गया है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, उस समय कुछ नहीं था हमारे 90s में. एंड आई स्टिल फील 90s वाज द बेस्ट. आई स्टिल फील 90s Right, वाज द बेस्ट. या right. स्ट्रगल वाज देयर बिकॉज एक तो ये आपको नहीं पता होता है कि आप उस समय इस इंडस्ट्री में जाने की सोच रहे हो, जहां मैं आने की सोच रहा था, जहां मैं हूँ. तो वो 20 years back it was really tough for me to decide, even because none of my family members or somewhere in the close ones also they were related to media industry. So it was very difficult for me also कि मैं इसको choose करूँ कि नहीं करूँ, because मुझे कोई guidance ही नहीं थी इस चीज को लेके. I was just like कि बस
करते जाओ, हो रहा है करते जाओ, बिकॉज कोई ऐसा नहीं था कि आपको, जैसे माई एंटायर फैमिली इज बिन अ बैंकिंग सेक्टर, तो ये इजी होता है कि डैड बैंक में है, मेरे अंकल बैंक में थे, ग्रैंडफादर वाज इन अ बैंक, तो इट वाज वेरी इजी कि हाँ आपको पता है कि वो पापा का पोस्ट हटेगा, वहाँ बेटे को बैठा देंगे। बट आई हैड नो वन कि मेरे को डांस या एक्टिंग या एंकरिंग शुरू करनी है, कैसे करे, क्या करे, किसके पास जाऊं, आई हैड नो आइडिया। एंड अनफॉर्चुनेटली उस समय ये फेसबुक और इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया कुछ नहीं था कि जहाँ पे आप, या इनफैक्ट गूगल भी नहीं था उतना कि आप राइट उतना हाँ सर्च कर सको कि वेयर डू सच आई में। फाइंड गुड ऑडिशन और एक प्लेसेस। टैबू था कि इंडस्ट्री इज अ बैड थिंग, एक टैबू डेफिनेटली था थोड़ा सा। 100, वो तो अब देखो, अभी भी आप अगर उस जमाने के लोग जो अभी भी प्रेजेंट हैं, जिंदा हैं राइट इनफैक्ट उनके पास अभी भी मेंटली में यही है कि ये नाचना गाना इज अ बुरी बुरी चीज। राइट और अभी इंडस्ट्री को इतना बैड वे से पोर्ट्रे किया जाता है कि like the very important thing is that, see, I don't smoke, I don't drink, I don't party, so people talk when I tell them कि मैं ये सब नहीं करता हूँ, तो people like यार like seriously आप तो इंडस्ट्री से हो। आप सच में नहीं करते? मैं सच आप में नहीं इंडस्ट्री से हो ना? नहीं करते। एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन आता है जो आपके फेस पे भी बड़ा सा क्वेश्चन मार्क था ना, वो सेम सबके माइंड में आ जाता है कि आप इंडस्ट्री से और आप स्मोक नहीं करते हो, ड्रिंक नहीं करते हो, पार्टी नहीं करते हो, इसलिए कि हाँ नहीं करता हूँ, नहीं अच्छा लगता है मुझे। एंड इट इज नॉट दैट कि मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप मेरे कोई भी सोशल मीडिया में चले जाओ, या संजय इज देयर, ही इज द प्रूफ। हाउ डिड यू कीप पुशिंग योरसेल्फ? अभी के टाइम पे ऐसा ही होता है, जैसे मैं भी देख रहा हूँ हमारे साथ वाले भी जो है, मतलब these youngsters give up quite easily on their dreams even on the slightest of trouble. See, it happens, as I said कि अगर आपके पास करेक्ट गाइडेंस नहीं होती है ना, तो आप जनरली जल्दी गिव अप कर देते हो। Suppose for an example, if even though if you are doing a CA and you don't have a good tutor to teach you कि बॉस इसको ऐसे पार करने का, इसको ऐसे पार करने का, तो आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट ना you'll give up कि नहीं मम्मा रहने दो, तो हम पापा के दुकान पे बैठ जाते हैं, नहीं होगा मेरे से। So that's the thing. But on the other hand, if you have that passion कि नहीं मेरे को बस यही करने का, मेरे को कुछ आता ही नहीं अब, and It's a do or die, करना ही है। like do it, like we are taking this chapter ahead, do it, मेरे को यही करना है, मेरे को यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। Like मैं भी जब starting में when I started doing all these things, so I have from the very, like when I was 5 or 6 year old, I did my first stage show, and so at that time now, that the crowd, the mic, the stage, the crowd clapping for me, that all attracted me a lot. Okay. And that moment I thought कि बस मेरे को ये करना है, ये मतलब करना I है। have to entertain my audience. So the entire chapter comes to a conclusion that just think, if you want to do that, I'm doing this, I don't do anything else, that's it. ऐसे तो बहुत बार हुआ होगा कि when you felt like giving up, and ऐसा भी हुआ होगा कि अब लगा हो कि नहीं आपको हम गिव अप करेंगे ही नहीं। So can you share ऐसे कुछ एग्जांपल्स कि जब लगे कि बस छोड़ देते हैं, या फिर नहीं आपको छोड़ना ही नहीं है? हाँ, ऐसा कई बार होता है एक्चुअली। मेरी जो इंडस्ट्री है, इसमें ना बहुत, मतलब देयर इज नथिंग कॉल कि आपके पास ये चीज रहेगा। लाइक यू हैव अ फिक्स इनकम, फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर वर्किंग with a company, or if you're working with someone, or if you have a business, that you have a certain amount कि बस ये मेरा monthly आएगा। In my industry there is nothing fixed. It's just that if you crack the ad, you'll get so much of amount. For an example, अगर मेरे को I've got a 1 lakh, तो वो हो सकता है पूरे 1 साल तक कोई दूसरा ad ही नहीं मिले, तो वो 1 lakh के साथ मेरे को पूरा साल निकालना पड़ता है। So it happens in that way. So there is nothing called fixed ki boss. So in that way only it happens ki somewhere you become a little depressed because you don't get a frequent work. Okay. कोई एक पीरियड था जहां आपको अपने आप को होल्ड करके रखना था। Right. और मैं वहां गिव अप कर चुका था कि मेरे लिए अब नहीं होगा वो, बिकॉज मेरे को ना एंकरिंग शोज नहीं मिल रहे थे। Why? Because Calcutta people were thinking अगर हम यश को बुलाएंगे तो हमको एक्स्ट्रा भाड़ा देना पड़ेगा आने जाने का। I have to pay him a flight fare, everything. So मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहा था।
I got frustrated. I was like कि मेरे को कुछ नहीं करने का, मेरे को कुछ करना ही नहीं है लाइफ में. I don't know. Many people know me from Sangvi also. That I used to teach dance there. I'm still. So people say that in your life you have a godfather. I'm very proud that I have a godmothers with me. So there are two, sisters of mine, Sangeeta and Vinita. They are the founder and director of Sangvi. So the way they have, what I'll say, they have taken care of me, including my talent. It's incredible. Like nobody, अगर मैं आपको जानता भी हूँ, मैं बहुत अच्छा दोस्त भी हूँ, मैं like it's like a relationship which I and Sanjay share. Like we are not a blood relation है हमारा एक दूसरे के साथ. But it was like कि yeah, we know each other, we care for each other. But उन लोगों ने मेरे लिए जो किया है, वो I think एक बहुत क्या बोलते हैं ना, वो कोई परिवार का आदमी भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है. उन लोगों ने जो मेरे लिए किया है, like they only pushed me कि अब ये हो गया, अब एक काम करो, ये करना शुरू करो, अब ये हो गया, अब काम करो, इसमें थोड़ा सा हाथ मारो. They only pushed me from singing to dance to They have guided you with them as their own. And they still guide me. I still look up to their guidance. I suppose ये हर एक इंडस्ट्री में है, हर एक फील्ड में है कि आपके पास ट्रबल्स रहेंगे. आप अपने कंफर्ट जोन, आप whatever passion you have, if you follow that, ट्रबल्स आपको फेस करने पड़ेंगे. If you have that capability, आप ट्रबल्स को पार करोगे sooner or later. कि कोई जल्दी कर लेते हैं, कोई लेट से करते हैं, but ultimately it all depends upon you. You have to do it. You decide whether you can do it or whether you don't want to do it. Like you are from Bollywood, definitely that's it. It's all on your dreams. आप क्या सपना देख रहे हो, वो खुली आंख से देख रहे हो या बंद आंख से देख रहे हो. मैं आपको honestly बताता हूँ. It used to happen when I used to stay in Bada Bazaar. I used to comb my hair and brush my teeth and wash my face, wear good clothes and sleep. My mom used to ask कि यार ये क्या करते हैं, रात को कौन आ रहा है. Then I used to tell, when I was very immature. I was like यार क्या है. Then I was like यार you never know मम्मा, हो सकता है इंडियन आइडल वाले आ जाए मेरा शूट लेने के लिए कि देखिए यश यहाँ रहता है, वो लोग सीढ़ी से मेरा पैन शॉट लेंगे, मैं देखो यहाँ सो रहा हूँ ऊपर में, मैं यहाँ पे हारमोनियम बजा रहा हूँ, मैं यहाँ पे गा रहा हूँ, ये मेरी कैसेट्स हैं. Because that time we used to have that cassette. Yes. छोटे हाँ. I had that physics का छोटा side A, side B. Correct. And then I've with my own hard-earned money, I've got that Walkman. उसमें Walkman मिला था, तो उसमें फिर वो गाने भरवाना. घर के नीचे एक दुकान थी, वहां जाके उसको बोलना कि आप ये साइड ए में ये गाने रहेंगे, और साइड बी में, मतलब साइड ए में सोनू निगम, साइड बी में उदित नारायण. It was in that zone. And सोनू निगम के भी मोहम्मद रफी के गाने. इट वाज नॉट कि सोनू निगम के गाने सुनने मुझे, सोनू निगम के मोहम्मद रफी वाले गाने सुनने, जो उसने मोहम्मद रफी के गाने गाए हैं. सो इट वाज ऑल इन दैट जोन ओनली. तो मैं उस समय से अपने मेंटली में स्टार था ब्रो, मैं उस समय से था. दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन. लाइक आप ये बात जो बोल रहे हैं कि आपने अपने आप को ऐसे विजुअलाइज किया है, whether consciously or subconsciously, that has played a role in you becoming you what you are. अगर आप सोचोगे नहीं तो आप बनोगे नहीं, तो सोचना तो होगा. Exactly. Dream. As we are talking in this show, dream over your infinite troubles. Let it happen. Trouble will come, as you said. Yeah, let it happen. Let it go now. Can you share your career graph with us? मतलब कहाँ आप स्कूल डेज से, मतलब किस पोजीशन से आपने शुरू किया एंड आज आप कहाँ हो? Your journey will definitely inspire us and inspire every viewers of Top Free. Definitely, and I keep inspiring myself with my own journey. So that's the best part, which I feel. If we talk about, as you said about my journey, the graph. When I was 5.5 years old, I did my first stage show, and that was like my मेरे जो दादाजी थे, it was his poem which I narrated on stage. So from that point of view, I started was like कि नहीं, मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे माइक में बोलना, because वो माइक में आवाज गूंज रही है, लोग ताली बजा रहे हैं. So I that stage कीड़ा came inside me.
from very that point it came. And then I started doing some singing at my home only, because उस समय नहीं था. फिर स्कूल में जो we used to have that 15th August का शो, या सरस्वती पूजा होती थी, गणेश पूजा होती थी, मैं वहाँ पे गाने गाने लग गया. फिर स्कूल की तरफ से मुझे बाहर भेजने लगे लोग कि आप इस कंपटीशन में जाइए, इस कंपटीशन में जाइए. वहाँ से भी बहुत प्राइज लाता था. सो समहाउ मैं एक टीचर्स का फेवरेट बन गया था कि ठीक है, तो मैं उसके बहुत फायदे भी उठाता था. देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट भजन संध्या, जगराता वगैरह थोड़ा थोड़ा. तो उसके बाद क्या हुआ दैट मेरे छोटे छोटे फोटोज या नाम आने लग गए न्यूज़पेपर्स में, कि बाल कलाकार यश चतुर्वेदी जो आते थे ना उस समय. आपको बहुत संतुष्टि होती है कि श्री श्री बालाजी महोत्सव में आपका स्वागत है, और नीचे कलाकारों के नाम रहते थे. तो उसमें आपकी इतनी सी फोटो है, आई थिंक आपकी आईब्रो जितनी होगी उतनी सी फोटो आती थी. उस फोटो में ऊपर लिखा रहता था यश चतुर्वेदी बाल कलाकार. तो वो देख के जो प्राउड होता था, मतलब इनफैक्ट टू माय ग्रैंडफादर आल्सो, एंड कि उनको लगता था, एंड ही हैज द एंटायर माय इट्स लाइक अ सेविंग आई कैन से, कि मेरे जितने नाम कहीं भी कुछ भी छपा होगा किसी बुक में, या मेरे समाज की किसी बुक में, या किसी न्यूज़पेपर में, वो सब कटिंग्स हैं उनके पास, मतलब थी उनके पास उस समय से. He used to save all these things. It was a big saving for me also. अपनी गवर्जा माता होती है बड़ा बाजार में. So I started singing that also. कि मैं ड्रीम करता था कि मैं वहाँ पे जाके गाऊं, लोग मुझे देखे. वो भी पूरा हो गया, वो सपना भी. फिर मुझे लगा कि then I used to take a tuition from somewhere in near कलाकार पोस्ट ऑफिस. तो वहाँ पे सरस्वती पूजा में मैंने ऐसे रैंडम डांस नहीं करते अपन कि म्यूजिक चल रहा है आपको डांस करना है. तो वहां पे दीदी लोग आई हुई थी, मेरी संगीता विनीता दीदी, संघवी सिस्टर्स. सो दे सॉ मी एंड दे वर लाइक कि यार तुम डांस अच्छा करते हो, हम लोग के साथ सिखाओ, साथ में रहो. एंड दे आल्सो स्टार्टेड दैट वे ओनली. मतलब उतना बड़ा एम्पायर नहीं था संघवी का उस समय, वो घर पे ही सिखाते थे. ठीक है करते हैं. क्लास आई थिंक 8 में थे तो स्टार्टेड. तो दीदी के साथ जाना आना, मतलब इट वाज अ लर्निंग. मतलब कुछ ऐसा सैलरी बेस कुछ नहीं मिलता था, कि बस दीदी के साथ जा रहे, सीख रहे, कैसे सिखाते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं. इंग्लिश आती नहीं थी, बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती थी. सो दीदी यूज्ड टू टेल मी कि तुम चुप रहना, कोई भी तुमको कुछ भी बोले या बोल देना. ओके, ग्रूमिंग सेशन नहीं थी, स्टार्ट हो गए थे. हाँ जी, ग्रूमिंग एग्जैक्टली, मैं वही बोला. हाँ, बिकॉज़ आई सेड आई हैड गॉड मदर्स नॉट फादर. मदर्स मतलब दो है मेरे पास, तो मेरे पास डबल धमाका था उन लोगों का. So in that way it all started, and then moving on to dance with संघवी. फिर संघवी से मुझे बहुत ज़्यादा फेम मिला, बहुत ज़्यादा फेम मिला. मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी एज एन एंकर ऑल्सो. तो वो बोलते अच्छा वो संघवी वाला यश एंकर. सो इट हैपेंस इन दैट वे. तो उस वे से संघवी ने मुझे सारा जितना भी फेम जो मैं चाहता था कैलकाटा में, वो मुझे संघवी ने दिया, संघवी ने ही दिया मुझे. तो इट हैपेंड इन दैट. मूविंग ऑन फ्रॉम देयर, देन दीदी वाज लाइक कि हमारा एनुअल शो होता था, उसमें मेरे एक भैया हैं दिनेश भैया, जिनको मैं एज एन एंकर लुक अप टू करता था कि यार बहुत अच्छा बोलता है आदमी, बहुत मजा आता है उसको सुन के. तो मैं उनको सुनता था, बट बैक स्टेज अपना डांस का प्रिपरेशन चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है. सो वन डे इट हैपेंड कि ही टोल्ड मी कि इस बार ना तू मेरे को इंट्रोड्यूस करना स्टेज पे. तो आई वाज लाइक कि वाओ, मुझे बोलने मिलेगा स्टेज पे फिर से. तो मैं उनको इंट्रोड्यूस करने गया. सो एंड लकीली व्हाट हैपेंड कि नेक्स्ट ईयर ही कुडंट कम बिकॉज ही हैड ए शूट की वजह से वो आ नहीं पाए नेक्स्ट ईयर शो में. तो दीदी ने बोला कि लास्ट ईयर तुम शुरुआत तो किया था, इस बार भी थोड़ा 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 बोल देना. सो दीदी इज लाइक कर लेगा तू, मुझे पता है तू कर लेगा, कर दे कर दे कर दे कर दे. कैन आई इंटरप्ट फॉर अ मोमेंट प्लीज. आप जब सरस्वती पूजा में डांस किए एंड व्हेन संघवी सिस्टर्स आपको अप्रोच किए, आपने खुले मन से, मतलब अपॉर्चुनिटी आया, यू ग्रैब्ड इट. फिर आप डांस बैक स्टेज कर रहे हो, एंकर ने आपको कहा कि इंट्रोड्यूस कर दो, आपने उस अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब किया. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को आप नोटिस करो और ग्रैब करो. अगर आपको डांस वहां पे मना कर देते तो शायद आप उनसे नहीं होते. अगर आप एंकरिंग के लिए वो वाला मैंने 2 मिनट का इंट्रोडक्शन था, अगर आप वो मना कर देते तो शायद आप अपने आप को एक्टिंग या फिर एंकर के तौर पर नोटिस नहीं कर पाते कि आप कितने अच्छे हो. सो यू नो अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना. अपॉर्चुनिटीज बोल के तो नहीं आएगा ना कि मैं आ गया,
वो तो आपको ढूंढना Correct, correct, पड़ता correct. है जो आपके पास आते हैं. सो दैट्स अ रियली वेल इतना अच्छा जर्नी रहा है कि आपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब किया है नोटिस करके. तो फिर वेडिंग एंकरिंग शुरू हो गई. फिर वेडिंग एंकरिंग में भी काफी नाम हो गया, लोगों ने पहचानने लगे. फिर इन दैट मोमेंट अगेन माय गॉड मदर्स केम एंड दे वर लाइक कि यार हो गया तेरा कलकत्ता में, जा अब तू यहाँ से, डन, मूव आउट. So my sister was there at as my backbone. He pushed me to go and fly and live your dreams. Why? Because I've told them at my very earlier age that I want to become an actor. यहाँ मुंबई आए, फिर कोर्स किया एंड देन डिप्रेशन में आए. फिर 2 साल बाद काम मिला एंड देन थिंग्स वर लिटिल बेटर. मुझे What did you fear the most while chasing your dreams? मतलब डर तो बहुत सारी चीजों में लगा होगा, पर सबसे ज्यादा डर क्या चीज में लगा आपको? एक मुझे ना हमेशा से अपने नाम का डर रहा है. Okay. नाम इन द सेंस कि मेरा नाम कभी किसी गलत चीज में ना इन्वॉल्व हो. बिकॉज मैं अपने आप को, जैसे मैंने पहले मैं 1000 बार ये बात बता चुका हूँ कि मैं खुद को पहले स्टार बना चुका था. पूरे इंटरव्यू में आई थिंक 100 या 101 टाइम होगा. मैं मेंटली प्रिपेयर था, उस चीज के लिए. तो मेरे को हमेशा ही डर लगा रहता था कि कोई मेरा नाम किसी गलत चीज में ना इन्वॉल्व करे. बट वो हमेशा हुआ, अनफॉर्चुनेटली हमेशा हुआ. बट कभी वो बिकॉज वो बोलते ना सत्य में विजय थे, कि वो बात सच नहीं थी, इसलिए वो बात प्रूव नहीं हो पाई. सो मुझे हमेशा डर, बिकॉज मैं अगर किसी लड़की से मिलने चला जाता था तो लोगों को लगता था कि यार ये यश तो बहुत बड़ा कैसोनोवा हो गया है, ये करता है, वो लड़कियों के साथ घूमता है, यू नेवर नो क्या क्या करता होगा उन लोगों के साथ. वॉट नॉट दे यूज टू स्पीक अबाउट मी. सो मुझे उससे डर लगता था यार. मुझे अभी भी उससे डर लगता है उन चीजों से कि यार बिगड़ गया. हाँ, people used to मतलब there was an incident we were discussing few days ago कि मेरी एक फोटो आई थी टेलीग्राफ में long back कि I did a dance show with Shamak Davar in Calcutta. So there was the front page with my picture holding a girl. Okay. And that too she was in sleeveless. Okay. वो भी उस टाइम का बात कर रहे हो आप? हाँ. और बस फिर भी मेरे पूरे मतलब अड़ोस पड़ोस ऊपर नीचे हंगामा हो गया था. Okay. ये लड़का हाथ से निकल गया. Okay. It is gone. And people तो used to गए हो. हाँ, मतलब हो गया, निकल गया, इसका काम हो गया पूरा. And they used to complain to my uncle. मेरे दादाजी के पास आते थे कि आप क्या करवा रहे हैं, देखिए लड़का क्या कर रहा है, लड़के लोग को छू रहा है. तो my entire family, touch wood, they were like very supportive. They knew कि ये ऐसा काम नहीं कर सकता है. भले कोई और फैमिली मेंबर भले कर देगा, but यश ऐसा काम नहीं कर सकता है. That they were pretty much sure about it. And I'm blessed that I've got so much of that sanskar. And I'm thankful Faith, that trust from your family. Exactly, right from my grandfather, my दादाजी, and everybody, right. आप किसी को भी अभी भी फोन करोगे ना, अभी भी आप फोन करोगे कि यश ने ना, आप पता है आपके बारे में बोला कि आप ना ऐसे 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 ऐसे, they will not believe only कि यश नहीं बोल सकता है. एक बार को ये भी मान लेंगे कि हो सकता है संजू बोला हो, संजय ने कहा हो ये बात. But Okay. you will not believe कि यश ने बोला होगा. नहीं, बनाना पड़ता है बीच बीच में. को उसको थोड़ा सा ऐसे बोलते रहो ना तो उसको भी अच्छा लगता है कि मैं भी हूँ. They have just jokes apart, but I had that much of faith in myself, and it came because of my family. My family used to trust me a lot. Even if I talk about Sanjay's dad, that mom, is बड़े पापा, उनके भाई, उनके बच्चे, they all used to trust me कि यश ऐसा नहीं करेगा. तो एक वो फेथ था जिससे मेरे अंदर वो फेथ ना कॉन्फिडेंट में बदलता गया. वो And you enter in that industry जहाँ पे नाम easily खराब होता है. बनता तो बहुत देरी से है, but खराब होने में 1 सेकंड लगेगा. So you have to shut their mouth. आपको अपना नाम clean, मतलब you had that fear कि अपना नाम हमेशा ही clean रखना है. Yes, भैया. One last question.
Okay. What advice do you wish to give our viewers so that they can also just do it? Very simple. लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. So just go ahead with your dreams, bro. आपको ये करना है, आपने ये सोच लिया, just go ahead. मेरे साथ ये हुआ है कि ऐसा नहीं करते नहीं तो ये सोचेगा, ऐसा नहीं करते तो ये सोचेगा, बट मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज एज आई सेड, लोग क्या सोचेंगे वो भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे. So let them think they want what they want to think. We just do it. अरे वाह, क्या बात है. You know, this has been such a spectacular session. मतलब मजा आ गया. I am sure viewers will enjoy it even more. And you know, yes, as rightly said, troubles are there everywhere. But your will to succeed should be strong. अब करना है तो करना है. There should be no plan B. आप अपने प्लान पे स्टिक रहो, उसको तोड़ मोड़ के आप आगे बढ़ते जाओ, बट नेवर हैव दैट प्लान बी कि अगर ये नहीं तो वो. Thank you so much for being a part of Talk Free. It has been a pure delight. Thank you so much, Sanjay and Preeti. It was really, I was delightful to actually come and give my experience to the viewers. And अच्छा लगता है जब आप अपनी जर्नी आप किसी को अगर बताते हो, not to inspire anyone, just to let them know कि बॉस ऐसा भी किसी की लाइफ में होता है. Because every single in this frame we are three other different people, and all three of us has a different story to reach somewhere where we are sitting here in this frame. So it's really I'm really happy that you both have chosen me to come and share my experience and give this feedback to the audience, those who are watching, कि यार ऐसी छोटी छोटी चीजें भी आई हैं लाइफ में जिसकी आपको जरूरत नहीं थी, बट फिर भी वो आई, बट आपने कैसे उसे पार किया, एंड हाउ व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स द सेम प्रॉब्लम्स. एंड एज आई सेड कि बस मैम प्रीति ने भी अभी बताया, प्रीति ने भी अभी बताया कि इट इज ओके to go with your single plan, as I was prepared कि if you are thinking to become a actor, just go for it. अगर होगा तो मिल जाएगा. See, one more very important very important thing to all the viewers and to all the people those are actually watching us. देखो, एक चीज बहुत स्ट्रांगली अगर आपको अपने अंदर डेवलप करनी है ना, तो वो हमेशा होना चाहिए खुद का जजमेंट पावर. मतलब आपको ये नहीं करना है, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप जजमेंट पावर स्ट्रांग करो दूसरों को जज करने का, आपको अपने आप को जज करने का है. द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस इज मेंट फॉर यू एंड दिस इज नॉट फॉर यू, you are a winner. You're a winner of life, I'll say. That's it. Yes, thank you again. It has definitely been such a fabulous session, getting to know you so closely. So, well, viewers, do not forget to subscribe to our YouTube channel, Talk Free, FB page, Talk Free, Instagram, Talk Free _ and Twitter, Talk Free. See you next Friday with a fresh new topic. Until then, it is me, Sanjay, Yash Bhaiya, and PM signing off. Please do like, do share, do subscribe them. They're ultimately awesomest people I have come across to this interview session. And I love the interview session. It was a very, very much, homely session, I'll say. It was, they make the guest very much comfortable. They give so much of space you be and go to your space and talk to us, and I'm really thankful that they have given me this space, and I'm happy. And guys, please like, subscribe, hit the bell icon, and make Talk Free super hit. See, अब तो यश चतुर्वेदी ने भी कह दिया है, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट. So please, एक स्टार का बात मानो and just go for it. Just do it. Don't stop. मतलब देखो, view, subscribe, do it. Just do it.
करेक्ट जिस dude आज हमारा शो का ये वी हैव केप्ट द थीम डू इट. सो सबसे पहले जो आपको करना है, इन सारी जो आपने बातें सुनी, ये सारे जो ज्ञान सुने हैं, उसके बाद hit the bell icon and subscribe the channel. Do it right now.